Hello students, let's continue with the next topic in this chapter, pair of linear equations into variables. Till now we have discussed all the techniques regarding with solving with various equations, linear equations to variable. Now we're moving to different topic in which we have to find values of some unknowns, means variables, okay, based on a given condition. So we will be given a condition and we need to find the value of the unknowns for which the condition is satisfied. So for example, here in this question, for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? We have been given two linear equations and here there are two unknowns a and b. We have to find their value and we have been given a condition that the pair of linear equation should have infinite number of solutions. So basically this topic, I think it should be clear to you. You have to find the value of unknown or unknowns. Okay, for example, here are two unknowns a and b. I'm not considering x and y as unknowns, these are variables. I'm considering a and b as unknowns. Okay, and we have been given a condition that the pair of linear equation has infinite number of solutions. So how will we proceed? Let's start. Our starting will depend upon the condition itself. Since we have been given infinite number of solutions, and I know that for infinite number of solutions, we have a1 by a2 is equal to b1 by b2 equals to c1 by c2. So this is for infinite number of solution. So for writing this condition to get credit, okay, normally this question comes for 3 marks and 1 mark is for writing this condition. Okay, so here a1 is 2, a2 is a minus b, b1 is 3, b2 is a plus b, c1 is okay. So I know that these equations, they are not in standard form. To convert them into standard form, we have to make RHS 0. So I am making it 0. In first equation, I am writing 2x plus 3y minus 7 equals to 0. And similarly in this equation, in second equation, I am writing a minus bx plus a plus by minus 3a plus b minus 2. This is a normal mistake that you will commit also, that while transposing this term towards LHS, make sure that you have put brackets, because there are three terms and only a negative sign will harm you. Okay, because only negative sign will make sure that all the other two terms b and minus 2, their signs are not changed. Okay, so making a bracket, putting them in bracket will ensure that all of the signs will be changed after opening the bracket. So you have to put this bracket, be very careful. So let's move back to this c1 is minus 7, clearly mentioned. Now c2 is minus, again I am putting bracket, 3a plus b minus 2. If both the terms, like here we had both c1 c sorry, they were on the RHS, it will not affect, because c1 by c2, the negative sign will be cancelled. But we have to make sure that you write in standard form first of all.
so as to avoid any scope of mistake. So let's continue further. A1 by A2, this will be, okay, I'm not writing again A1 by A2, I'm just putting the values. A1 by A2 will be 2 by A minus B. This was A1, this was A2, okay. Now B1 by B2 will be 3 by A plus B, and C1 by C2 will be minus 7 upon minus 3A plus B minus 2. Okay, now I can cancel these negative signs. Why I can cancel? Because this negative sign was common for all the three terms, so I can cancel. In case it was just for 3a, means if the bracket was open and minus 3a minus b plus 2 was there, you cannot cancel it because you have to take common first of all and then cancel. So I told you that this will not affect the answer if both the terms, both the C1s, I mean both the C's are on the RHS. Okay, so you get back 7 and 3a plus b minus 2 here, negative signs are cancelled. So now next step is to use this condition. How will you use? Obviously by cross multiplying. I will use these two first of all. And because there are two unknowns, a and b, so the basic rule in mathematics says that if you have two unknowns, you need two relations. And from those two relations, you will find two equations to get the value of those unknowns. Okay, so if there are n unknowns, a, b, c, d, matlab मान लो there are n unknowns, then you should have n equations to solve. So very basic rule, n unknowns, n equations should be there. So two unknowns, two equations should be there. I'm writing the first equation by taking these two into consideration. 2 into a plus b is equal to 3 into a minus b. Right now I'm not considering this part of the equation. Okay, and I can do this. Why? Because these two are equal to each other. So I can take any two. I can take first and third part also because they are also equal to each other. I can take second and third part also. So there is no restriction. You can take any two parts of the equation based upon your convenience. Okay. So solving it further, you will have 2a plus 2b equals 3a minus 3b. Now combining the like terms on one side of the equation, so cancelling negative sign on both the sides, you have a is equal to 5b. Take this as equation number 1. Now I need another relation because there are two unknowns. I told you earlier you need two equations. So I'm considering these two parts. Okay. So if I'm considering these two parts, then after cross multiplying, I will get 3 into this 3a plus b minus 2, and this will be equal to 7 into a plus b. Okay, so multiplying 3 3s are 9a plus 3b minus 6 equals 7a plus 7b. So doing further, 9a minus 7a,
plus 3b minus 7b minus 6. So what I'm doing is I'm transposing all what was there in RHS towards RHS, sorry LHS. So 9a minus 7a is 2a, 3b minus 7b is 4b minus 4b, and this is minus 6. Now to solve it, again we have a pair of linear equations now, and I can use any method, elimination, substitution, cross multiplication, but here it is convenient to use substitution method. Why? Because I have a value of a as 5b, so just putting this value of 5b here into a, so we will have 2 times 5b minus 4b minus 6 equals to 0. Again on further treatment, this will become 10b minus 4b minus 6 equal to 0. I'm proceeding further here. So 10b minus 4b will be 6b minus 6 equal to 0, and 6b is equal to 6, and b is equal to 6 upon 6, that will yield 1. So here I have b is equal to 1. Putting this value of b here in equation number 1, I will have a equals 5 into 1. So this will yield 5. So a equals 5. So this is our answer. Now let me repeat this in Hindi also. I'm speaking English. Why? Because one of the parent suggested that it is better that you be bilingual, so that the students may get grasp English also. So it's okay. अब मैं हिंदी में बोलता हूँ. हमने किया क्या है, हमने पहले कंडीशन लगाई है, कंडीशन लगाकर जो कंडीशन आपको दी होगी वही लगानी है. ओके, फॉर एग्जांपल हियर इट वाज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए a1 बाई a2 b1 b2 c1 बाई c2 तीनों इक्वल किए. वहाँ से कोई भी दो पेयर लिए. दो क्यों लेने पड़े मुझे? क्योंकि यहाँ पे दो अननोन्स थे. अदरवाइज अगर एक दिया होता तो एक से भी काम चल सकता था. ठीक है, हम वो भी करेंगे. उसको यूज़ किया, यूज़ करते करते ए और बी की वैल्यू निकाल ली. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने किया क्या है, कि क्वेश्चन था क्या. क्वेश्चन ये था कि भाई मेरे पास एक इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन है जिसमें मुझे नहीं पता कि ए और बी की वैल्यू क्या है, पर मुझे ए और बी की ऐसी वैल्यूज चाहिए कि ये जो दोनों इक्वेशन बने इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो. ओके, तो मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी, वहाँ से ए बी निकाल लिया. अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं ए और बी की वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगा? 5 माइनस 1 4, 4x बन जाएगा. सिमिलरली 5 प्लस 1 6, ये 6 5 बन जाएगा. और यहाँ पे क्या बनेगा? 3 इंटू ए, यानी कि 3 5 15, 15 प्लस 1 16, 16 माइनस 2 इज 14, ये बनेगा. आप देखिए अब इसका a1 2, इसका a जो है वो 4, तो 2 अपॉन 4 क्या आएगा? 1/2. 3 अपॉन 6 भी क्या आएगा? 1/2. यहाँ से -7 हो जाएगा, यहाँ से -14 हो जाएगा. तो -7 अपॉन -14 ये क्या आएगा? 1/2. a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 सभी इक्वल आ गए, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए. तो आप ऐसे आंसर चेक भी कर सकते हो कि आपका जो आंसर आया वो सही आया कि नहीं आया. ओके, सो दिस इज ये ऐसा कुछ चीज़ है जो आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन येस यू कैन बी श्योर ऑफ कि आपका आंसर जो है वो सही है कि नहीं है. आप चेक कर सकते हो, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है, यू कैन चेक. ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका ही नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं. तो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट. यहाँ पे आपको अननोन दिया हुआ है के, ठीक है, एंड आपको कंडीशन दी हुई है नो सोल्यूशन. सो नो सोल्यूशन के लिए आपको के की वैल्यू निकालनी है. अगेन प्रोसीडिंग ऑन द सिमिलर लाइंस दैट वी हैड ऑलरेडी डन. इसमें आप पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 पहचान लीजिए. उससे पहले कंडीशन लिखनी है. सो वी नो दैट फॉर नो सोल्यूशन we have a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. ये आपको याद होना चाहिए. नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल केस, और पैरेलल केस में ये दोनों तो इक्वल रहते हैं, लेकिन ये
आपस में इक्वल नहीं रहते. सो हियर A1 3 है, A2 is 2k minus 1, B1 1 and B2 is k plus 1, sorry k minus 1, C1 is minus 1, C2 is minus 2k minus 1 या फिर minus 2k plus 1. ये क्यों आया ये आप खुद देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में ही ऐसा किया था, ट्रांसपोजिंग की थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर आपका ये बनेगा. अब कंडीशन लगा देते हूँ. कंडीशन लगाते समय 3 अपॉन 2k minus 1 equals 1 upon k minus 1 equals minus 1 upon minus 2k plus 1. कईयों ने मेरी गलती पकड़ ली होगी, जिन्होंने पकड़ी दैट्स वेरी गुड, जिन्होंने नहीं पकड़ी अभी, जी हाँ, यहाँ पे क्या आएगा नॉट इक्वल टू. ठीक, अब मैं इक्वेट किसको करूँ? ऑब्वियसली जो आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल कौन है? ये है ना. इन दोनों को मैं अगर इक्वल कर देता हूँ तो उसका फायदा नहीं होगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो उसका फायदा नहीं होगा इसमें. ऐसा नहीं है कि इसको कभी सॉल्व नहीं करना, ये भी सॉल्व करना होता है, लेकिन कब करेंगे ये भी हम देखेंगे. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल का, दैट इज़ माय फेवरेट क्वेश्चन. फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं. अभी इनको जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट टू पार्ट्स को, तो क्या आएगा? 3 into k minus 1 and 2k minus 1 into 1, that will be 2k minus 1. This is 3k minus 3, this is 2k minus 1. So we have 3k minus 2k, that is only k, and we have minus 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा. 3 minus 1 is 2. तो k की वैल्यू 2 आ गई, और इसमें सिर्फ k ही निकालना है, इसलिए कोई दूसरी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, एक ही अननोन था. हम चेक कर सकते हैं, फिर से चेक कर लेता हूँ. अगर मैं k की वैल्यू 2 डालता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा? 2 to the 4, 4 minus 1 is 3, तो ये 3x बन जाएगा. ये बनेगा 2 minus 1, that is only 1y, तो 3x plus 1y, और ये बनेगा 2 to the 4, 4 plus 1 is 5. तो अब देखिए 3 upon 3 1, 1 upon 1 1, तो a1 by a2 b1 b2 के इक्वल आ गया. एंड यहाँ पे वो बन जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 5, तो किधर लेके आएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा तो 1 अपॉन 5, तो c1 by c2 के इक्वल नहीं आ रहा. ओके, सो दैट इज रिक्वायर्ड कि नो सोल्यूशन हो. So now let's move on to the next question. I'm doing example number 16 of your NCERT textbook. Reason being this is very good question, और इसमें आपको एक नई चीज़, या रादर मैं बोलूँगा कि ऐसी चीज़ जिसमें आप ज़्यादा गलतियाँ करते हो, ऐसी चीज़ मिलेगी आपको देखने के लिए. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. So we have to find the value of k, and the condition is infinitely many solutions. Without wasting any time, I am starting it. We have here, before here let me write condition for infinitely many solution, because writing condition only will yield 1 mark. So for infinitely many solution, you have a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2. So all the things are equal for infinite many solutions. Now a1 is, I'm just writing without mentioning what is a1, without mentioning what is a2. Yeah, you need to mention it in your exam, but because I'm making the video short as possible, so just directly writing k upon 12, I hope you are getting it, 3 upon k minus k minus 3. The good thing is that the equations are already in standard form, so I need not to transpose. So we have these 3 equal parts of the equation. LHS, RHS, MHS सब equal है.
तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टू पार्ट्स। ओके, कंसिडरिंग दीज टू, फर्स्टली तो k इंटू के इज के स्क्वायर एंड 3 इंटू 12 इज 36। अब आता है कि किस नंबर का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ पर अब आपकी थोड़ा सा सावधानी आती है। आपको क्लास 10th में बार बार ये अच्छी तरह याद रहना चाहिए कि किस नंबर का स्क्वायर 36 अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आपको सबका आंसर, मैक्सिमम बच्चे आंसर देते हैं 6। वो भूल जाते हैं कि 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है, बिकॉज दो बार माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा, -6 इंटू -6, तो आंसर विल बी +36। तो हमेशा जब भी स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट बनता है तो साथ में प्लस माइनस का साइन आता है। ये प्लस माइनस हमें ये बताता है कि के की दो वैल्यूज हैं, एक तो वो हो सकती है +6 और दूसरी वो हो सकती है -6। तो यू हैव टू टेक वन एट ए टाइम। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +-6, मतलब एक बार +6 लेनी है, एक बार -6। बट क्या दोनों वैल्यूज ही एप्लीकेबल है? अब यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है, जब भी दो वैल्यूज आ जाए बी वेरी केयरफुल। उसका रीज़न क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैल्यूज तो दो आ जाती हैं लेकिन दोनों एप्लीकेबल नहीं होती। तो है तो यहाँ पे एक ही अननोन के, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन इधर भी है तो मैं इन दोनों को भी, या फर्स्ट और लास्ट को या सेकंड और लास्ट, मतलब एक और बार कंसिडरेशन ले रहा हूँ। सो आई एम कंसिडरिंग दीज टू ऑल्सो फॉर द रीज़न दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ के। अगर यहाँ पे एक ही आती तो शायद मैं दूसरे को देखता भी नहीं। ओके, पर यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही हैं तो इसीलिए मुझे दूसरा देखना है कि मैं 6 लूँ या -6 लूँ। चलिए दूसरा देखते हैं। तो 3 इंटू के, दैट विल बी 3k, एंड k इंटू के -3, तो ये आपका आ गया 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर -3k। तो ये 3k उधर जाके हो जाएगा प्लस 3k प्लस 3k इज 6k, इसको इधर रहेगा। Now one another common mistake that we all commit is कि आप k के साथ k को काट देते हो कि ये k इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और k स्क्वायर के साथ k रह जाएगा। मतलब what you will do, आपको ये लिखना नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ, आप ये काम करोगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी, ये गलत है। याद रखो, आप कभी भी अननोन के साथ कटिंग नहीं कर सकते ऐसे। उसका रीज़न ये है कि आपको अननोन की नेचर नहीं पता। ओके, वैसे तो आप देखिए कि अगर कोई और नंबर होता तो मैं ऐसे कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अननोन है। के की नेचर क्या मुझे नहीं पता, और मैं इसलिए बार बार ये बोल रहा हूँ के की नेचर नहीं पता। नेचर का मतलब यहाँ पे क्या है, उसका स्वभाव नहीं है। नेचर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर के 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ गया, है ना। तो वेरिएबल का ये के का हमें नहीं पता, कंडीशन के का वैल्यू नहीं पता, तो के अगर 0 हो जाए, के की वैल्यू 0 हो जाए तो डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ सकता ना। तो फिर आपने कटिंग कैसे कर दी, 0 के साथ डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, और तो 0 नहीं आ सकता क्योंकि अगर मैं 0 डालता हूँ तो लीनियर इक्वेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन 0 को कंसीडर रखना है। ठीक है, तो मैं इसे कटिंग नहीं कर सकता, आप भी नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ एक तरफ ले जाते हैं। 6 के उस तरफ ले गया, ए कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो के और एक के -6, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो मतलब आइदर के इक्वल्स 0 और के -6 इक्वल्स 0। तो के अगर 0 है तो ठीक है 0 है, या फिर के की वैल्यू क्या हो सकती है 6। तो यहाँ से भी मेरे पास दो वैल्यूज आ गई के की, एक तो 6 आ गई, एक 0 आ गई। अब यहाँ से भी 2 आ रही थी, यहाँ से भी 2 आ गई, लेकिन एक वैल्यू ऐसी आ रही है जो दोनों में कॉमन है, और वही हमारा आंसर है।
वो कौन सी वैल्यू, k इज इक्वल टू 6, ये इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। सो इसको नंबर देता हूँ 1, इसको नंबर देता हूँ 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, so from 1 and 2 k is equal to 6। ओके, आप चाहो तो इसको पुट करके भी देख सकते हो। अगर आप -6 पुट कर देते हो तो आपके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन नहीं आएंगे। अगर आप 0 पुट कर देते हो कभी आपके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन नहीं आएंगे, सिर्फ k इज इक्वल टू 6 के लिए आएगा। और k इज इक्वल टू 6 मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो दोनों कंडीशन से आ रहा था। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद मैं करता हूँ मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जो कि आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो दिस इज द क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन में देखिए, फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एंड ए यूनिक सोल्यूशन। तो आपको तीनों ही पूछ लिया उन्होंने। और यहाँ पे आपको थोड़ा देख के डर लग रहा होगा, लैम्डा कुछ नहीं है, इसको आप के की तरह मानिए। दिस इज अ ग्रीक लेटर। फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश लिखते हो, ये सभी के सभी रोमन लेटर्स हैं, तो ऐसे ये ग्रीक स्क्रिप्ट का एक लेटर है लैम्डा। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। आप इसको के भी लिख सकते हो, अगर एग्जाम में के आ जाए तो भी डरना, तो भी वो क्वेश्चन वही रहेगा। तो फिलहाल तो लैम्डा है तो मैं लैम्डा ही लिखूंगा। सो आपको नो सोल्यूशन के लिए चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट राइटिंग फॉर नो सोल्यूशन क्या कंडीशन होती है। कंडीशन लिख देता हूँ, पर a1/a2 b1b2 ये नहीं लिखूंगा। सो कंडीशन लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट में। फॉर नो सोल्यूशन आई नो व्हाट शुड बी द कंडीशन, इट शुड बी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, सो इसको यूज़ कर लेते हैं। a1 इज लैम्डा अपॉन a2 इज 1। ठीक है, x के साथ 1 लगा, यहाँ पे x के साथ लैम्डा। b1 is 1 and b2 is lambda, c1 is minus lambda square and c2 is -1। माइनस क्यों आया ये आपको खुद पता लग जाना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट 2 वाले कंसिडर कर रहा हूँ पहले ये दोनों। सो लैम्डा इंटू लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर एंड 1 इंटू 1 इज 1। अगेन ये स्क्वायर हो जाकर स्क्वायर रूट बनेगा, तो याद रखिए प्लस माइनस साथ में आता है, तो प्लस माइनस रूट ऑफ 1 और आंसर क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, दो वैल्यूज आई, एक +1 और एक -1। लेकिन दो वैल्यूज आई तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा भी केस कंसिडर कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1, मैं ये लास्ट ये दोनों ले रहा हूँ। 1 इंटू 1 इज 1 स्क्वायर एंड लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर इज लैम्डा क्यूब। सो यहाँ पे जाके क्यूब का बन जाएगा क्यूब रूट। अब साथ में यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि 1 का क्यूब रूट 1 नहीं होता है, -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 को अगर क्यूब करेंगे तो 3 बार माइनस आएगा और फिर वो -1 बन जाएगा। तो जो ये प्लस माइनस का साइन आता है सिर्फ इवन पावर्स के साथ आता है, ऑड पावर्स के साथ या ऑड पावर के स्क्वायर रूट में ही नहीं आएगा, सॉरी ऑड पावर के रूट्स में ही नहीं आएगा। सो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ रही है लैम्डा इज इक्वल टू 1। इधर भी मेरे पास दो वैल्यूज आ रही थी, एक आ रही थी 1 और एक आ रही थी -1। सो यहाँ से पता लग रहा है फ्रॉम 1 and 2, ये 2 मान लो, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से कि लैम्डा क्या है 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, तो वेरी सिमिलर टू द पार्ट दैट वी हैव डन जस्ट डन। तो उसके बाद अब देखते हैं सेकंड पार्ट में। सो सेकंड पार्ट मैं इधर ही कर देता हूँ स्टार्ट। देखिए सेकंड पार्ट जो है वो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो है ये कोई इससे का बहुत डिफरेंट नहीं है, एक्सेप्ट ये आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू जगह इक्वल टू आ जाता है। तो मैं इसको इधर a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब इक्वल आएंगे। अब यहाँ पे देखिए a1 क्या है, तो वो तो वेरिएबल्स या कोफिशिएंट्स तो सॉरी वही रहेंगे, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहीं से मैं उधार यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब सब कुछ वैसे ही होगा, इन दोनों को देखिए
लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये करते करते मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ गलत हो गया ऊपर। इट्स ओके, हम अभी गलती सुधार सकते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। तो ये प्लस माइनस रूट 1 आएगा और ये लैम्डा की वैल्यूज फिर से 2 आ गई, एक आ गई +1 और एक आ गई -1। ओके, अभी वापस ज़रा फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पे नॉट इक्वल टू था और मैं इक्वल टू लेके चलता रहा, सो आई एम सॉरी अबाउट दिस। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो फर्स्ट टू पार्ट पे यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, यहाँ टू नॉट इक्वल टू का साइन था, तो नॉट इक्वल टू रहेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय आंसर पे, क्योंकि सेकंड और 1 से मुझे पता लग रहा है यहाँ पे 1 में क्या था, 1 भी था और -1 भी था, पर सेकंड इक्वेशन पता लग रहा है कि नहीं 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा फिर -1। तो हियर आई डिड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी, हो जाता है। ओके -1, लेकिन आपको भी ऐसे पता लग जाना चाहिए। ओके, सो -1, लैम्डा इज -1। यहाँ पे हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो जो हमने पहले कर दिया था वो एक्चुअली इस पार्ट का था। तो इधर आप देखिए, अब मैं इन दोनों से ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ इन दोनों को। तो 1/λ इंटू लैम्डा स्क्वायर इज लैम्डा क्यूब एंड 1 × 1 इज 1। तो इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से वही क्यूब रूट आएगा, लेकिन इस बार एक क्यूब का ध्यान रखिए कि ये क्यूब रूट जो है वो रूट की गोदी में हो। इस बार 1 रहेगा, ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल रहेगा। सो यहाँ से मेरे पास आ रहा है, इसको नंबर 3 दे रहा हूँ, यहाँ पे नंबर 4। फ्रॉम 3 and 4 आई कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1। देखिए सॉल्व करने का मेथड सेम है, सिर्फ जो आपकी रीजनिंग है वो डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल सेम था, बस नॉट इक्वल टू आ गया तो मैंने बोला हाँ, यहाँ पे लैम्डा बोल रहे हैं कि इक्वल 1 की नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 भी था, -1 भी था, तो अगर 1 के इक्वल नहीं हो सकता तो किसके इक्वल होगा, -1 के। यहाँ पे भी वही चला, यहाँ पे बोल रहे थे कि लैम्डा 1 भी और -1 भी हो चल सकता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, नहीं 1 ही हो सकता है, तो यहाँ से 3 और 4 में क्या बोला, हाँ 1 ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4th में 1 आ रहा है, इसमें 2 वैल्यूज थी तो कॉमन आ रही है 1। वैसे भी -1 नहीं आ सकती थी, क्योंकि -1 तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर -1 होगा तो फिर 9 सोल्यूशन होंगे, और अगर 1 होता है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या रहेगा फिर, वेरी इजी, यूनिक सोल्यूशन तभी हो सकता है जब आपका 9 सोल्यूशन ना हो या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ना हो, मतलब जब ना तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो, ना ही -1 हो। लेकिन इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि यू विल बी डीलिंग विद इनइक्वालिटी फर्स्ट टाइम। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं, विद दिस आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा टॉपिक। सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2। ठीक है, ये किसके लिए, फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए। ये ऊपर लिखना है आपको, फॉर नो सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, एंड दिस इज फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल में बिल्कुल वैसे प्रोसीड करना है, बस नॉट इक्वल टू का साइन डालते जाना है। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू +-1। प्लस क्यों आया, क्योंकि इधर स्क्वायर रूट आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे हुआ हुआ। तो यहाँ से पता लग रहा है कि लैम्डा की वैल्यू प्लस या -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। यूनिक सोल्यूशन हमेशा यही होता है, यूनिक सोल्यूशन जब भी पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि इनके अलावा सब वैल्यूज चलेंगी, सिवाय ये नहीं चलेंगे। ठीक है, तो मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी चलेगा, लेकिन +-1 नहीं चलेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑन कंडीशंस, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिंक में आपको, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक क्विज मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में ये और नॉर्मली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।